Hello student, welcome to today's lecture. Today we are covering C++ switch statement. Previous lecture we saw standard input and output. Today we are covering switch statement. So we already covered decision statement, that is if and if else. So similarly, if and if else, there is a switch statement used for the decision making. So let's understand what is switch statement. A switch statement allow a variable to be tested for equality against a list of values. Each value is called as a case, and the variable being switched on is checked for each case. So it means a switch provide a number of cases to you, and you can select the one case and execute that case. So here is a, we can say, syntax for switch statement. So first you have to write a switch keyword, then you have to provide a expression, then suppose you want to write a first case, then you have to mention a case as a keyword. So the case is a keyword, and then you have to mention a constant expression, and then here you have to write a various statement, and at the end you have to mention a break. Okay, so break is optional, but if you don't write break, then it execute all cases. So depend on your requirement, whether you required or not, you can mention a break statement, but mostly cases we write a break at the end of each case. Then here is another case, then constant expression, statement, and break, and last is a default state. So here, if suppose you are writing 4 cases here, and out of 4 it does not match any cases, so default case may execute. Again, default is optional, so depend on your requirement, you can write or you can ignore this. So here is a flow diagram for switch statement. So suppose you want to add two numbers, suppose number 10 and 20, you have to add, subtract, and multiply. So here we mention cases for each program. Suppose first case for the addition, second case we write code for subtraction, and in third we write for the multiplication. Okay, so here how flow work. So first you ask user enter your choice. Suppose user enter subtraction, then it execute case 2. If user enter addition, then it execute case 1, and if user enter multiplication, then it execute case 3. So this is a decision making. As you know, switch is used for the decision making, whether you have to select addition, subtraction, or multiplication. So depend on the requirement, it can perform the operation. Here expression, what is expression? Expression is a choice. ओके, यूजर चॉइस. हम एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं, तब आपको मोर क्लियर हो जाएगा इसमें. सो हियर इज अ एग्जाम्पल. सो इन दिस एग्जाम्पल we are assign various grade. Okay, suppose grade A, okay, grade B, grade C, grade D, and grade F, and last is a default grade.
here suppose we are storing grade in character form, so char is initialize char grade, so it is a hard coded value. Suppose I assign a grade equal to a, तो क्या होगा, it how program execute, it always start with the main, so char grade की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, देन इट गोज टू द स्विच. ओके, स्विच में क्या पास किया हमने, ग्रेड. अब ग्रेड की वैल्यू क्या है, ग्रेड की वैल्यू a, तो क्या होगा, केस a एग्जीक्यूट होगी. ओके, केस a क्या है, सी आउट एक्सलेंट, तो एक्सलेंट प्रिंट होगा, ब्रेक होगा. व्हाट इज ब्रेक, तो ब्रेक क्या करेगा, जो भी करंट लूप है आपका वो उससे एग्जिट हो जाएगा, उसके बाहर जाएगा. मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो हियर इज योर लूप, कंप्लीट लूप. अगर आप ब्रेक लिखते हो किसी भी, अगर फॉर लूप में भी आपने ब्रेक लिखा तो क्या होगा, वो लूप से वो एग्जिट हो जाता है एंड डायरेक्टली कंट्रोल गोज टू द हियर आउटसाइड द लूप. तो आउटसाइड लूप क्या है, योर ग्रेड इज, एंड ग्रेड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. सो हियर ओनली वन केस एग्जीक्यूटेड, जो अदर केसेस है बी सी डी एफ नॉट एग्जीक्यूटेड. सो यहाँ पर हमने डिसीजन लिया है थ्रू द ग्रेड वैल्यू. नाउ सपोज मैंने ग्रेड इक्वल टू बी पास किया है. अब यहाँ पर ए की जगह क्या है, बी है, ये याद रखो. तो क्या होगा, इट गोज टू द स्विच, देन ग्रेड में वैल्यू क्या है, बी, तो क्या होगा, जो बी केस हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी. अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, सी आउट, तो यहाँ पर एक्सेलेंट की जगह क्या प्रिंट होगा, गुड प्रिंट होगा. देन उसके बाद ब्रेक. ओके, तो ब्रेक क्या करता है, एग्जिट द करंट लूप, जो भी करंट लूप है उससे वो बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पर लूप यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली एंड सी आउट योर ग्रेड इज. अब यहाँ पर ग्रेड क्या प्रिंट होगी, बी, योर ग्रेड इज बी. तो सिमिलरली अदर केस देखते हैं हम. अब सपोज यहाँ पर मैंने वैल्यू डाला ग्रेड इक्वल टू जेड डाला, तो क्या होगा, यहाँ पर केस जेड के लिए केस लिखी क्या कोई, मैंने जेड के लिए कोई केस नहीं है. अगर आपने डिफॉल्ट केस लिखी तो क्या होगा, इनवैलिड ग्रेड प्रिंट हो जाएगा. और डिफॉल्ट केस में आपको ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं, और ऑटोमेटिकली एग्जिट होता है. ओके, डिफॉल्ट आपको एट द एंड मेंशन करना है. ओके, स्विच के एट द एंड आपको मेंशन करना है, तो डायरेक्टली क्या आएगा, योर ग्रेड इज, और वो जेड प्रिंट करेगा. ओके, तो ये समझ में आया है हाउ स्विच वर्क. तो जो भी आप पैरामीटर पास करोगे यहाँ पर, तो डिपेंड ऑन दैट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो इट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग. ओके, और एक प्रोग्राम देखते हैं डिपेंड ऑन स्विच केस. सो इन दिस प्रोग्राम क्या किया है, आपको क्या करना है, एंटर. तो यहाँ पर प्रीवियसली हमने हार्ड कोडेड इनपुट लिया था, जैसे ग्रेड डी हो गई, ए हो गई. अब हम क्या करेंगे, इस कोड में थ्रू यूज़र इनपुट लेंगे. तो यूज़र इनपुट के लिए हमें क्या करना है, सी इन यूज करना है. तो नंबर स्टोर करना है हमें. ओके, जो भी नंबर हो एंटर, इसके लिए क्या किया, इंट डिक्लेयर किया, इंट नम डिक्लेयर किया है. देन सी आउट एंटर अ नंबर टू चेक ग्रेड. आपको नंबर एंटर करना है टू चेक अ ग्रेड. वो नंबर किस में स्टोर किया है, नम वेरिएबल में स्टोर किया है. एंड वो नम की वैल्यू किसको पास की है, स्विच को. इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. ओके, जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो स्विच में जाएगा. अब सपोज यहाँ पर केसेस लिखे, केस क्या है, 10 ग्रेड मिली आपको, 20 ग्रेड मिली है, 30 ग्रेड मिली है.
एंड एक डिफ़ॉल्ट केस है, डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है, आपको 10 भी नहीं मिला, 20 भी नहीं मिला और 30 भी नहीं मिला. सो डिपेंड ऑन योर इनपुट वो केसेस सिलेक्ट करेगा. सपोज तो यहाँ पर यूज़र इनपुट है तो मुझे क्या यूज़ करना है, std इन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर. तो std इन में क्या पास करूँगा, सपोज मैंने 20 पास किया है, वैल्यू 20 पास की है, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 20. नम इक्वल टू क्या है 20. ओके, तो स्विच में आएगा, यहाँ पर 20 आएगा तो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा 20 नंबर के केस पर. तो केस 20 क्या लिखा है, सी आउट इट इज 20 एंड ब्रेक. ब्रेक मीन्स इस लूप के बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम एग्जिट होगा. तो यहाँ पर आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, इट्स 20. अब सपोज std इन में मैंने 50 वैल्यू डाली है. ओके, अब नम की वैल्यू क्या हो गई 50. अब स्विच में आएगा, स्विच 50, केस अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो क्या करेगा डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट. ओके, डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है, सी आउट नॉट 10, 20 और 30. तो यहाँ पर चेक करो आउटपुट, मैंने वैल्यू 50 डाली थी किसमें, std इन में, तो आउटपुट क्या आया है यहाँ पर, नॉट 10, 20 और 30. सो इन दिस वे वी सिलेक्ट द नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ डिसीजन जो आपको एग्जीक्यूट करना है. सो डिपेंड ऑन द यूजर चॉइस. यह आपके लिए एक असाइनमेंट है. तो असाइनमेंट में क्या करना है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर फॉर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन. तो कौन कौन से ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसमें कंडीशन क्या है, द प्रोग्राम शुड टेक 2 ऑपरेंड्स फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन those 2 operands depending upon the operator entered by user. Use switch statement to select the operation and finally display the result. तो यहाँ पर क्या करना है, आपको switch केस का यूज करना है and 2 operands, operands mean the user input. Suppose enter फर्स्ट नंबर, तो नंबर ए लेना है आपको, यूज़र से लेना है, एंड नंबर बी लेना है. ओके, 2 नंबर आपको यूज़र से इनपुट करने हैं. एंड सपोज यूज़र ने यहाँ पर 10 डाला है एंड 20. ये हार्ड कोडेड नहीं करना है, आपको यूज़र से इनपुट लेना है, तो आपको क्या है सी इन यूज़ करना पड़ेगा. ओके, एंड देन आपको क्या करना है, यूज़र से चॉइस पूछनी है. ओके, एंटर योर चॉइस, वेदर आपको एडिशन परफॉर्म करने हैं, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है. उसके लिए आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे. ओके, सो डिपेंड ऑन चॉइस आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है. तो ये समझ में आया क्या करना है, 2 नंबर यूज़र से इनपुट लेने हैं एंड ये 4 ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करने हैं यूजिंग स्विच. तो दिस इज असाइनमेंट फॉर यू. तो यहाँ पर ऑपरेंड क्या है, सपोज 10 + 20, तो ऑपरेंड 10 एंड 20 क्या है, ये ऑपरेंड्स है, एंड जो प्लस है वो क्या है, वो ऑपरेटर है, ये याद रखो.